Good day, dear students. Welcome to another insightful session of English literature. I hope you all are ready to dive deep into one of the most profound and thought provoking plays of 20th century, Waiting for Godot by Samuel Beckett. So, today's class is not just about studying a play, it's about engaging with the ideas that shaped modern drama, especially theater of the absurd. Beckett's Waiting for Godot may seem puzzling on the surface, but beneath its pauses, silence, and seemingly aimless dialogue lies a powerful commentary on human existence, hope, despair, and the eternal act of waiting. So, whether you are here to explore absurdist themes, understand absurdist themes, understand postmodernism, or prepare for competitive exams, this class will equip you with critical insight into Beckett's work, its background, plot, characters, key themes, and literary significance. So keep your minds open and your pens ready because today we are not just reading a play, we are questioning life itself. So let's begin. So, Waiting for Godot was first produced in London. लंदन में सबसे पहले ये प्रोड्यूस हुआ था in 1955, right? Brought its author an international reputation. The play does not constitute a plot or a story, but is an image of Beckett's intention of nothing ever happens in men's existence. Two tramps, Estragon and Vladimir, wait by a tree on a country road which may be described as a kind of limbo. Enter Pozzo, a despot carrying a whip, driving Lucky, his slave, tethered by a rope. They mistake Pozzo for Godot, from whom they hear later from Boy, who has been sent to tell them that Godot will come tomorrow, not today, but Godot doesn't come at all. So, this play, which is considered as absurdist play, written in 1948 or 49, in between of this time, it was published in 1954. 1954 में पहली बार पब्लिश हुआ था ये. ठीक है. इट्स अ ट्रेजी कॉमेडी इन 2 एक्ट्स. इस प्ले में सिर्फ 2 ही एक्ट्स हैं. इसको हम ट्रेजी कॉमेडी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी है. एंड दिस प्ले वॉज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच में इसका जो असली नाम था, फ्रेंच में इसका एन अटेंडेंट गॉडो एंड लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और तब ये नाम हुआ वेटिंग फॉर गॉडो, राइट? सो वेटिंग फॉर गॉडो is Beckett's translation of his own original French play, An Attendant Godot, and the subtitle is A Tragi-Comedy in 2 Acts. अगर आपके पास इस प्ले का टेक्स्ट है तो आपने देखा होगा कि ये तो टाइटल है वेटिंग फॉर गॉडो एंड दिस इज द सब टाइटल, राइट? सो वेटिंग फॉर गॉडो वॉज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच, An Attendant Godot by Samuel Beckett between 1948 to 1949 and later translated into English by Beckett himself. The play was first performed in 1953 in Paris, right? Has since become a landmark in modern drama and the theater of absurd, right? And you know, this play was voted for the most significant English language play of 20th century. इसका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था वो 1953 में हुआ था, 5 जनवरी को, एट थिएटर दी बेबीलोन में इन पेरिस, एंड इट वाज परफॉर्म्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इन लंदन. अगर हम इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस इन इंग्लिश की बात करें तब ये लंदन में 1955 में सबसे पहले परफॉर्म हुआ था. लेकिन अगर हम एक्चुअल में बात करें कि प्ले को कब पहली बार परफॉर्म किया गया था, तब वो
5 जनवरी 1953 में पेरिस में किया गया था, फ्रेंच लैंग्वेज में, राइट। सो इसका जो जॉनर है वो ट्रेजिक कॉमेडी है, जो कि इसके सबटाइटल में भी दिया गया है। जॉनर, इसका जो जॉनर है बेसिकली इसमें कोई खास प्लॉट नहीं है अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि जैसे इसकी ओपनिंग होती है इस प्ले की, वैसे ही इसका एंड भी होता है। सो ये इस प्ले में सिर्फ 2 सेंट्रल कैरेक्टर है, वैसे तो और भी कैरेक्टर्स हैं लेकिन सेंट्रल कैरेक्टर ये 2 हैं, एस्ट्रोगॉन एंड व्लादिमीर। एस्ट्रोगॉन का निकनेम है गोगो एंड व्लादिमीर का है डीडी। सो व्लादिमीर जो है वो फिलोसफिकल मैन है, एस्ट्रोगॉन जो वो टायर्ड पर्सन है, एंड दे बोथ आर वेटिंग फॉर गॉडो फॉर नो रीजन, फॉर नो एम, एंड दे डिड नॉट इवन नो when Godot will come, whether he will come or not. So, and what will they ask to Godot when he will come? What they will talk to Godot? उन्हें कुछ नहीं पता है, बस ये पता है कि उनको वेट करना है गॉडो का, राइट। इन अ वाइडर सेंस द ट्रैम्स रिप्रेजेंट मैन इन जनरल। ये जो 2 ट्रैम्स हैं, एस्ट्रोगॉन और व्लादिमीर, दे प्रेजेंट मैन इन जनरल, their life is life in suffering. They present a commentary on life. They are suffering from the fruitless expectations, like we are waiting for Godot. So the whole play abounds with metaphor of waiting, suffering and salvation. Through salvation is denied to them, so they have come from nowhere and they have nowhere to go. They indulge in one thing or the other just to lighten the burden of their waiting. The tramps, the 2 tramps, with their rags and their misery, they represent the fallen state of man, the squalor of their surroundings, their lack of a stake in the world, represent the idea that here is a world we can build, no abiding city. So the most remarkable thing about the play is its unconventional design. The play is apparently haphazard, but it is an ordinary powerful play in which form and meaning are skillful blended. So the play represents human existence. If we talk about the historical context of the play, so this is post World War II. So the time period is post World War II. Europe was a time of existential questioning, loss, and spiritual emptiness. The play reflects this climate of uncertainty and the search for meaning in a seemingly meaningless world, right? If we talk about the philosophical influence, so this play is deeply rooted to existential philosophy, particularly the ideas of Albert Camus and Jean-Paul Sartre, who questioned whether life has any inherent meaning. ये 2 लोग ऐसे हैं, इन्होंने मतलब they questioned whether life has any inherent meaning. So this play is deeply rooted with the existential philosophy, which is the idea of these 2 persons, right? And the next thing is theater of absurd. So this play is a best example of the theater of absurd. So this play, this is a dramatic genre. A theater of absurd क्या है? एक dramatic genre है, right? Where traditional narrative structures are abandoned in favor of disjointed dialogue, illogical situation and repetitive actions to reflect the absurdity of human life. आप जितने भी इस द थिएटर अब्जर्ड की प्लेस पढ़ेंगे, आपको कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि इलॉजिकल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, डिसजॉइंटेड डायलॉग्स होंगे, ठीक है, और रिपीटेटिव एक्शंस होंगे जिनका कोई मीनिंग नहीं होगा। एब्सर्ड का मतलब ही यही होता है, नो मीनिंग, मीनिंगलेस, विदाउट एनी एम, विदाउट एनी गोल, बस चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही है, क्या रीज़न है,
क्या उसके पीछे मोटिव है, कुछ नहीं पता हमें, बस वो चीज़ें हो रही हैं. दिस इज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड. सो द थिएटर ऑफ एब्सर्ड is a dramatic genre that emphasizes of meaninglessness of human existence and inadequacy of language to convey meaning. ये आपको लगभग मिड 20th सेंचुरी के टाइम पर ये टर्म काफ़ी इमर्ज हुई थी एंड इट गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी. ये इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी एंड this genre influenced sorry it features illogical plots. इसमें illogical plots होते हैं, राइट और इसके अलावा इसमें नॉनसिकल डायलॉग्स होते हैं और जो कैरेक्टर्स भी होते हैं ना दे आर ट्रैप्ड इन एब्सर्ड सिचुएशंस. सो अगर हम इस प्ले के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट आएगा meaninglessness of existence. So the absurdist plays often portray a world where traditional values, purpose, and logics are absent, leaving characters feeling lost and alienated. Second इसका characteristic है inadequacy of language. So the language is often used in repetitive, nonsensical, or even contradictory way, highlighting its failure to communicate effectively. Third point is illogical plots. So play may lack a clear narrative structure, featuring fragmented storylines, repetitive actions, and characters in confusing or in nonsensical situations. Fourth point is existential themes. So the theater of the absurd explores themes of alienation, isolation, anxiety, and the search for meaning in a seemingly meaningless worlds. And the last point of theater of the absurd is non-realistic characters. So characters are often archetypes, stereotypical, or lack depth. They are highlighting the dehumanizing aspects of the absurd world they inhabit. सो यहाँ पर दो इन्फ्लुएंस देखने को मिलते हैं हमको. पहला तो है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसकी हमने कई बार बात की है. एग्जिस्टेंशियलिज्म की मैंने जब बात की थी तो मैंने दो नाम लिए थे, एल्बर्ट कैम्यू एंड जॉन पॉल सार्ट्रे. सो दे एक्सप्लोर्ड द concept of absurd universe, right, and influencing the themes and worldview of the theater of absurd. So ये जो प्ले है यहाँ पर दो इन्फ्लुएंसेस हैं इस प्ले के. द फर्स्ट इज एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसका मैंने आपको बताया कि दो फिलोसोफर्स हैं, एल्बर्ट कैम्यू एंड जॉन पॉल सार्ट्रे. दे एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ एन एब्सर्ड यूनिवर्स. And the second thing is surrealism. So surrealism basically, this is the movement. The movement drew inspiration from surrealist artists using dreamlike images. Right, dreamlike imagery or illogical scenarios to challenge the traditional notion of reality. और इसमें ये जो थिएटर ऑब्जर्व है इसमें कई और भी सारे नोटेबल प्ले राइट्स हैं. जैसे एक तो खुद यही हैं सैमुअल बेकेट, जिनका वेटिंग फॉर गॉडो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है. इसके अलावा एंड गेम भी है. एक और भी है जॉन जेनेट, उनका द मेड्स है. आर्थर एडमॉफ है, उनका प्रोफेसर टेरेन है. यूजीन एनेस्को है, इनका राइनोसरस है. और द बेल्स सोप्रानो है. ऐसे और भी कई सारे हैं, राइट. अब हम बात करते हैं प्लॉट समरी की. सो इस स्टोरी में दो सेंट्रल प्लेस हैं, कैरेक्टर्स हैं. एस्ट्रोगॉन, गोवो एंड व्लादिमीर. एस्ट्रोगॉन और व्लादिमीर दो ट्रांस हैं
एस्ट्रोगॉन बेसिकली एक टायर्ड पर्सन है एंड व्लादिमीर एक फिलोसफिकल मैन है एंड दे बोथ आर वेटिंग फॉर गॉडो for no reason, no aim. They didn't even know when Godot will come, whether he will come or not. What will they ask to Godot? What they will talk to Godot? कुछ नहीं पता, बस वेट कर रहे हैं. इसके अलावा दो और कैरेक्टर्स हैं. The first one is पोजो एंड द सेकेंड फोर्थ इज, ये फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया. तो पोजो है, पोजो का एक सर्वेंट है, स्लेव है लकी. और एक और कैरेक्टर है अ बॉय, इसका नाम बॉय ही है. ये मैसेंजर ऑफ गॉडो है. यही इन्हें बार बार आके बताता है कि मिस्टर गॉडो आज नहीं आएंगे, वो कल आएंगे या वो आने वाले हैं. सो दिस कैरेक्टर, it's his messenger of Godot. He always forgets in meeting with Vladimir every day and says that today Godot can't come but he will come tomorrow. So many incidents happens every day here, like a boy gives message to Vladimir, पोजो, फिर पोजो और लकी आते हैं. व्लादिमीर एंड एस्ट्रोगन जो है वो हमेशा वेट करते रहते हैं. एंड दीज ऑल 5 कैरेक्टर्स डोंट रिमेंबर एनीथिंग. ये भी बड़ी ख़ास बात है कि इनको जब ये एक दिन ये सब चीज़ें होती हैं, ये लोग सुबह से लेकर शाम तक गॉडो का वेट करते हैं. शाम को आकर बॉय बताता है कि वो आज नहीं आएंगे, वो कल आएंगे. अब जब कल का दिन आता है तो ये सारे कैरेक्टर सब कुछ भूल जाते हैं, इनको कुछ याद नहीं रहता. सो ये यहाँ पर ये भी बड़ी अलग सी बात है कि फिर से ये एक ही काम को दोबारा अगले दिन रिपीट करते हैं. एंड वेटिंग फॉर गॉडो इज़ एन avant-garde play. Theatre is also known as the experimental theatre, right? So Waiting for Godot is a 2-act play where nothing happens twice, as famously described as by critic Vivian Mercier. Yet this nothingness is rich in meaning, where two tramps, Vladimir and Estragon, wait for someone named Godot on a barren country road beside a leafless tree. They pass the time talking, arguing, and contemplating suicide and interacting with the two other characters, Pozo and a pompous man. Pozo is a pompous man, and his servant Lucky, who is tied by a rope and behaves like a slave. So a boy occasionally appears, bringing the message that Godot will not come today but surely tomorrow. So the cycle repeats in Act 2 as well. मतलब ये सब काम Act 1 में भी हुआ और यही सब चीज़ें, all the things will happen in Act 2 as well with the subtle changes, highlighting the repetitiveness and uncertainty of life. And the reality is Godot never arrives, right? अब कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं हम. व्लादिमीर, जिसका निक नेम है डीडी, ही इज़ मोर इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल. देखा जाए तो व्लादिमीर इज़ मोर इंटेलेक्चुअल, रैशनल. आप ये सब लिख लीजिए, मेरा यहाँ पर सब कुछ लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है. सो व्लादिमीर इज़ द मोर इंटेलेक्चुअल, इरेशनल एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ द टू ट्रैम्प्स. ये दो ट्रैम्प्स है ना, इनमें से ये ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है व्लादिमीर. ही रिमेंबर्स पास्ट इवेंट्स मोर डीपली एंड ऑफन क्वेश्चंस द मीनिंग ऑफ देयर सिचुएशन. ही वरीज अबाउट द पास्ट ऑफ द टाइम he worries about the passage of the time and is more aware of their suffering. अगर इन दोनों में से देखा जाए तो व्लादिमीर को थोड़ी चीज़ें पिछले याद रहती हैं और वो थोड़ा ज़्यादा वरीड है, अवेयर भी वो ज़्यादा है अपनी सफरिंग के लिए. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो व्लादिमीर है वो माइंड और सोल को रिप्रेजेंट करता है. ही ऑफन इंटरप्रेटेड एज द मोर स्पिरिचुअल हाफ ऑफ द डुओ. मतलब ये ज़्यादा स्पिरिचुअल भी, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा सोच रहा है. एंड ही ट्राइज टू गिव स्ट्रक्चर टू देयर वेटिंग, शोइंग मैनकाइंड्स टेंडेंसी टू इम्पोज मीनिंग ऑन क्योर्स, राइट. सो इसके कुछ की ट्रेट्स हैं, जैसे कि ये काफ़ी फ़िलोसफिकल है,
व्लादिमीर काफ़ी फिलोसफिकल है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, एंक्शियस है, एंड ही इज़ प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स एस्ट्रोगॉन. And Vladimir repeats religions and existential ideas, and he even questions on existence and memory. Right? अब बात करते हैं एस्ट्रोगॉन की, जिसका नाम गोगो भी है. सो एस्ट्रोगॉन इज अर्दी, फॉरगेटफुल, इमोशनल एंड इंस्टिंक्टिव. ही लिव्स इन द प्रेजेंट मोमेंट. इसको पिछला पास्ट कुछ याद नहीं रहता उसको. एंड ही इज़ कंसर्न्ड विद द फिजिकल नीड्स, जैसे कि फूड, स्लीप, इन पर ज़्यादा फोकस्ड है ये, कि हमें बस टाइम से खाना मिल जाए और हम सो जाएं. यही हमारी फिजिकल मतलब नीड है, बेसिक नीड है. ये व्लादिमीर की तरह बिल्कुल नहीं सोचता है कि हम यहाँ क्यों वेट कर रहे हैं, किस लिए वेट कर रहे हैं. राइट. एंड ही कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल विद हिज बूट. अगर आप प्ले को देखेंगे भी तो यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस हैं, प्लेज हैं, जो मतलब थिएटर्स की क्लिप्स हैं, आप उसमें देख सकते हो. जब पढ़ेंगे भी टेक्स्ट को इवन, तब भी आप देखेंगे कि ये अपने शुरुआत से ये अपने बूट के साथ, अपने शू के साथ स्ट्रगल कर रहा है. सो दिस दिस कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल विद हिज बूट्स सिम्बलाइजिंग हिज डिसकम्फर्ट विद लाइफ, कि ये लाइफ में काफ़ी डिसकम्फर्टेड है. राइट. सो ही रिप्रेजेंट्स द बॉडी और फ्लैश. जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना माइंड और सोल को, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी और वी कैन से फ्लैश को. फिजिकल सफरिंग्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और बेसिक ह्यूमन नीड्स को भी. समटाइम्स सीन एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग विच हु इज़ कंफ्यूज्ड, टायर्ड एंड हेल्पलेस. इसका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी चाइल्ड लाइक है, डिपेंडेंट है, फॉरगेटफुल है ये. और ये इसके कंपैरिजन में, व्लादिमीर के कंपैरिजन में, ये काफ़ी क्या बोलते हैं, ये काफ़ी चाइल्ड लाइक है. राइट. ये चाइल्ड लाइक है, डिपेंडेंट है, फॉरगेटफुल है, और इसके कंपैरिजन में ये लेस एनालिटिकल है और बहुत ज़्यादा इमोशनल है. व्लादिमीर इतने इमोशनल नहीं जितना एस्ट्रोगॉन है. व्लादिमीर थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, वैसे तो दोनों ही ट्रैम्प्स हैं, बट ये थोड़ा इंटेलिजेंट है इसके कंपैरिजन में. लेकिन ये एनालिटिकल नहीं है, और ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है और डर भी जाता है. सो बेसिकली ये कॉमन मैन को रिप्रेजेंट करता है. राइट. अब है पोजो. सो पोजो एंटर्स एज अ कॉन्फिडेंट, कमांडिंग फिगर हु एक्सरसाइजेस पावर ओवर लकी, क्योंकि जो लकी है उसका स्लीव है. And he represents authority. Right? Authority को represent करता है, कैपिटलिज्म को ये represent करता है, और ह्यूमन क्रूएलिटी को ये represent करता है. एक्ट 1 में ये काफ़ी एरोगेंट दिखाया जाता है, काफ़ी थिएट्रिकल दिखाया जाता है, बट एक्ट 2 में ये ब्लाइंड हो जाता है, काफ़ी हेल्पलेस हो जाता है, और इसकी पावर भी चली जाती है. So he embodies the illusion of control and dominance, and he may present the tyranny of time, pride, or fate. His physical and moral decline act 1 to act 2, मतलब काफ़ी एक्ट 1 में काफ़ी डोमिनेंट, काफ़ी एरोगेंट दिखाए, और एक्ट 2 में ये हेल्पलेस हो गया, ब्लाइंड हो गया. तो एक्ट 1 से लेकर एक्ट 2 में इसका फिजिकल और मॉरल डिक्लाइन हुआ. दैट शोज द इम्पर्मनेंस ऑफ सोशल पावर. राइट. ये रिप्रेजेंट करता है नार्सिसिस्टिक नेचर को, कमांडिंग एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है ये काफ़ी. एक्ट 1 में ये काफ़ी क्रूअल है, लेकिन एक्ट 2 में इसका ऑपोजिट, इस पर काफ़ी दया आती है लोगों को. एंड ही इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड विद अपीयरेंस एंड कंट्रोल. अब हम बात करते हैं लकी की. तो लकी जो है वो पोजो का सर्वेंट है, बाउंड बाय अ रोप. इसको एक रोप बांध के रखता है ये. एंड ही इज़ हेवनली बर्डन. काफ़ी कुछ सामान इसने कैरी करके रखा है जो काफ़ी भारी है. ये साइलेंट है, मोस्ट ऑफ द प्ले ये साइलेंट है, इसने बहुत ही कम बोला है. हाँ, लेकिन इसका एक डायलॉग है जो काफ़ी लंबा है, और वो डायलॉग भी नहीं कहेंगे उसको, मोनोलॉग है इसका. तो इसके मोनोलॉग पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. बल्कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसके मोनोलॉग को. सो दैट हिज मोनोलॉग रिफ्लेक्ट्स मेंटल ब्रेक डाउन. सो ये रिप्रेजेंट करता है बर्डन एनस्लेव्ड माइंड को, एंड ऑप्रेस्ड ह्यूमैनिटी का सिंबल है ये किस वजह से सफ़र कर रहा है, कोई रीज़न ही नहीं है, कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है इसका. बट इसका जो मोनोलॉग है जो काफ़ी फेमस है,
that mocks intellectual discourse and reflects the breakdown of language and meaning. ये काफ़ी इसका अगर हम की ट्रेड्स देखें तो ये काफ़ी साइलेंट, सबमिसिव और मैकेनिकल पर्सन है. ये पोजो की काफ़ी हैवी बर्डन्ड हैवी वेट लगेज को ये कैरी करके रखता है विदाउट एनी कंप्लेंट. पूरे एक्ट में उसको ये कैरी करके रखता है. और ये मोस्ट ट्रैजिक प्ले है पूरे, मतलब मोस्ट ट्रैजिक फिगर है पूरे प्ले में. सबसे ज़्यादा बुरा इसके साथ हुआ है. फिर आता है अ बॉय या द बॉय, कुछ भी कह लीजिए आप. ही इज़ अ यंग मैसेंजर हु अराइव्स एट द एंड ऑफ ईच एक्ट. हर 2 एक्ट के एंड में, मतलब जितने भी एक्ट्स हैं उसके एंड में ये आता है और व्लादिमीर एस्ट्रागॉन को ये इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर गॉडो आज नहीं आएंगे, विल नॉट कम टुडे बट श्योरली टुमारो. इसकी जो आइडेंटिटी है वो काफ़ी एम्बिग्यूस है. हमें इसका नाम भी नहीं पता है कि इसका नाम है भी क्या, बस बॉय है ये. एंड ही क्लेम्स नॉट टू रिमेंबर द प्रीवियस डेज विजिट. मतलब इसको ये पूछते भी है ना सेकेंड एक्ट में कि कल तुम आए थे क्या, तो ये कहता मुझे याद नहीं, मतलब आई डोंट रिमेंबर. तो ये भी भूल जाता है. ये रिप्रेजेंट करता है फेथ को, होप को, क्योंकि ये होप तो लेकर आता है कि आज नहीं आ पाए मिस्टर गॉडो बट कल ज़रूर आएंगे. तो फेथ, होप एंड फॉल्स प्रॉमिस, उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है. एंड ही इज़ द ओनली लिंक बिटवीन द नोन टू द अननोन. नोन कौन है? व्लादिमीर एस्ट्रागॉन, पोजो एंड लकी. इन सब का ये लिंक कनेक्ट कर रहा है गॉडो से. तो ये बॉय के थ्रू ही हो रहा है. मिस्टर गॉडो जो इसी को बताते मैं आज नहीं आऊँगा कल आऊँगा, ये बताते था उनको जाकर. और क्या पता ही मिस्टर गॉडो है भी क्या और नहीं भी है क्या, कुछ नहीं पता हमें. सो ही इज़ द लिंक बिटवीन नोन एंड द अननोन थ्रू unreliable. Though he is very unreliable, he could also present the human tendency to cling to belief despite constant disappointment. ये काफ़ी इनोसेंट है देखा जाए तो. जो ये कैरेक्टर है ना, ये काफ़ी इनोसेंट है, टिमिड है, अनश्योर है. एंड ही ब्रिंग्स अ वॉक सेंस ऑफ रीअश्योरेंस, पॉसिबली द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर. अब एक कैरेक्टर है मिस्टर गॉडो, जिनके नाम पर तो टाइटल भी है वेटिंग फॉर गॉडो. ही नेवर अपीयर्स ऑन स्टेज, कभी नहीं आया वो स्टेज पर. येट ही डोमिनेट्स द प्लेज एटमोसफेयर. कभी स्टेज पर नहीं आए लेकिन पूरा एटमोसफेयर जो प्ले का वो पूरा डोमिनेट करते हैं. एंड द एक्ट ऑफ वेटिंग फॉर हिम डिफाइंस ऑल कैरेक्टर्स एक्शन. पूरा प्ले इनके ही इंतज़ार में निकल गया, सारे कैरेक्टर्स इनके ही इंतज़ार में है, उसी हिसाब से वो एक्ट कर रहे हैं. तो जितने भी एक्ट, मतलब जो भी लोगों का बिहेवियर है, जो भी कुछ है, वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये प्ले में नहीं है देखा जाए तो, ये स्टेज पर भी नहीं है, बट ही डोमिनेट्स द प्ले. और क्रिश्चियन इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ही इज़ गॉड. देखो नाम में भी गॉड है ना, तो इनको गॉड भी मान लिया गया है. ये सिंबल है होप के, सेल्वेशन के, डेथ के भी यही है, मीनिंग और अथॉरिटी के. एंड सैमुअल बेकेट डेलिबरेटली लेफ्ट गॉडो अनडिफाइंड. उन्होंने अपनी एक मे बी कुछ इंटरव्यू या कोई ऐसे में भी बोला है ये बात कि ही डजेंट इवन नो हु इज़ गॉडो. अगर उन्हें पता होता तो वो खुद भी बता देते कि कौन है. So Beckett's deliberately left Godot undefined, so he comes a blank canvas. So जो गॉडो है वो ब्लैंक कैनवस है फॉर द ऑडियंस फील्स, डिज़ायर्स एंड बिलीव्स. अब ये ऑडियंस के ऊपर, रीडर्स के ऊपर है, उन पर डिपेंड करता है कि वो गॉडो को किस तरह से इमेजिन करते हैं, रीडिफाइन करते हैं. एंड हिज एब्सेंस इज़ मोर पावरफुल देन एनी प्रेजेंस. मतलब वो जो 5 कैरेक्टर जो स्टेज पर होते हैं, कोई कम होता है कोई ज़्यादा. से बॉय बहुत कम होता है. मेन कैरेक्टर्स तो व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन ही है, लेकिन इन सब की प्रेजेंस फीकी पड़ जाती है गॉडो की एब्सेंस के सामने. एंड द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड हिज नॉन अराइवल. राइट. सो एक बार हम सारा फिर से देख लेते हैं. व्लादिमीर सिंबलाइज कर रहा है माइंड, सोल और रीजन को भी करता है. राइट. एस्ट्रागॉन सिंबलाइज करता है बॉडी, फ्लैश, इमोशंस को. पोजो करता है अथॉरिटी, ईगो, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, अथॉरिटी, ईगो, इम्पर्मनेंस को. लकी करता है सर्विट्यूड को, इंटेलेक्ट को, बर्डन को. राइट.
और बॉय करता है होप को, इनोसेंस को, बिलीफ को, और जो गॉडो है वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है, मीनिंग को, एब्सर्डिटी को, राइट। अब हम बात करते हैं थीम्स की। राइट, so in this play Beckett builds his theme through two ways: the small stage setting and the characters' absurd conversations and action. So the character represents humanity, and the setting of the play represents human existence, and the words and actions of character demonstrate larger truths and about the human existence. The first theme of the play is the absurdity of existence, meaninglessness, right? So the most noticeable features of the play is its writers, its utter absurdity. These two tramps decided to end their waiting for by hanging themselves, or simply by leaving from there, but they keep standing there doing nothingness. Only they agree that there is nothing to be done. So they work absurdly hard to fill the time well while they wait. The unavoidable conclusion is that human existence in itself absurd. So the central idea is that life lacks a clear meaning or purpose, and the characters wait endlessly without knowing that who Godot is or why they are waiting for him. Right? The second theme is the purposelessness of human life, which is also meaninglessness. None of the character has a meaning purpose in life. They are now simply moving from one place to another, and their traveling appears counterproductive. So the messages from Godot delivered by the boy are equally purposeless. Godot will never come on, and it is not at all if the message are even meant for Vladimir or Estragon, because the boy calls Vladimir Albert, right? मतलब वो नाम भी गलत बोल देता है, तो उनको लगता है ये मैसेज उनके लिए नहीं है. एंड ऑल द कैरेक्टर्स सीम टू बी ट्रैप्ड इन देयर लाइफ, इन देयर purposeless roles in life, and the idea that life has no purpose and recurring the theme in the theater of the absurd and waiting for Godot is an example of the theater of absurd, right? So the third theme is time in waiting. Time in the play is circular and certain. The act of waiting becomes a metaphor for life. So action, और यहाँ पर ना चीज़ें repeat भी हुई हैं काफ़ी. So the actions and dialogues are repeated with slight variation, and this reflect how people fill time with meaningless routines to avoid confront emptiness, right? Fourth theme is hope and despair. So Godot is a simple symbol of hope, and but his absence causes the despair. यही गॉडो जो है यही सिंबल है होप का, बट इसकी जो एब्सेंस है वो क्या कॉज कर रही है, डिस्पेयर कॉज कर रही है. एंड द प्ले सजेस्ट दैट इवन फॉल्स होप कैन कीप पीपल गोइंग. द फिफ्थ इज dependency and power dynamics. So Pozzo and Lucky represent the relationship between master and slave. Vladimir and Estragon also depend on each other even when they quarrel. So the character often passed the events, blurring the sense of self and time, and this challenges the idea of a stable identity and coherent reality, right? इसकी डिटेल समरी विथ जो दोनों एक्ट्स की डिटेल समरी, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं इस प्ले के रिगार्डिंग, और फिर ये क्लास वाइंड अप करेंगे. सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है, गॉडोज आइडेंटिटी. सो बेकेट ने ना खुद ही रिफ्यूज़ कर दिया था कि गॉडो को कौन है आइडेंटिफाई करने से. गॉडो को डिफ़ाइन करने से सेमिल बेकेट ने खुद ही रिफ्यूज़ किया.
उन्होंने एक बार कहा भी था कि इफ़ आई न्यू हु गॉडो वॉज आई वुड हैव सेड सो। मतलब मुझे खुद पता होता कि गॉडो है कौन, मैं प्ले में ही बता देता ना। सो कई सारी इंटरप्रिटेशंस भी हैं गॉडो के लिए कि वो शायद गॉड है क्योंकि नाम थोड़ा सिमिलर है, एंड डेथ, होप, मीनिंग, and even a joke about a French cyclist, right? Second point is language and style. So the dialogues are filled with pauses, silences, contradictions, and the play defies logical storytelling and builds tension through the absence of the action. Third is critical reception. So क्रिटिकल रिसेप्शन में मैं यही बोलूँगी कि जब इस प्ले को पहली बार परफॉर्म किया गया था, इट एक्चुअली कंफ्यूज द ऑडियंस एंड ऑल्सो गेव देम अ शॉक। पहली बार में जब लोगों ने इसको पढ़ा या देखा तो लोगों को काफ़ी कंफ्यूज किया। इवन हम, जब मैंने भी इस प्ले को पहली बार पढ़ा तो मुझे भी प्ले के एंड तक मुझे उम्मीद थी कि गॉडो आ जाएगा, गॉडो जो भी है आ जाएगा, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो तो आया ही नहीं और कुछ भी क्लियर नहीं है। और इस तरह की चीज़ें उस समय पर पहली बार हुई थी, तो द प्ले एक्चुअली कन्फ्यूज्ड एंड शॉक द ऑडियंस। ओवर टाइम इट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर रेवोल्यूशनिंग मॉडर्न थिएटर, राइट। एंड परफॉर्मेंस रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी रही थी। बैकेट वॉज रिस्ट्रिक्ट अबाउट कास्टिंग वुमेन इन द ओरिजिनल रोल्स। मतलब वो खुद भी नहीं चाहते थे कि कोई वुमेन को लिया जाए परफॉर्मेंस के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि इस प्ले में आपने देखा होगा कि इस प्ले में कोई फीमेल कैरेक्टर है ही नहीं। तो परफॉर्मेंस रिस्ट्रिक्शंस थे। मतलब बेकेट वॉज स्ट्रिक्ट अबाउट नॉट कास्टिंग वुमेन इन द ओरिजिनल रोल्स फॉर चेंजिंग द स्क्रिप्ट। इसका काफ़ी कल्चरल इम्पैक्ट भी है। जो फ्रेज है वेटिंग फॉर गॉडो हैज़ बिकम अ metaphor for waiting for something that never arrives, right? So waiting for Godot is not about the destination but about the act of waiting itself. तो वेटिंग फॉर गॉडो में हमें कोई हैप्पी एंडिंग नहीं मिलता, कोई कंक्लूजन नहीं मिलता है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये किसी डेस्टिनेशन के बारे में है ही नहीं। इट्स जस्ट अबाउट द एक्ट ऑफ वेटिंग, and it challenges our assumptions about narrative, identity, and meaning in literature and in life as well. So Beckett forces us to confront the absurd. मतलब बेकेट ने हमें फोर्स किया है कि हम कन्फ्रंट करें एब्सर्ड को। कैसे कैसे करेंगे? विद ह्यूमर, साइलेंस एंड एम्बिग्यूटी, राइट? So, with this, we will conclude today's session where we explore the background, the plot, and the major themes and the deeply symbolic characters of Samuel Beckett's Waiting for Godot. I hope this introduction has given you a strong foundation to approach the play not just as a literary text but as a philosophical inquiry into life, time, and existence. In our next class, we will dive deep into both acts 1 and 2, exploring key dialogues, symbolisms, and the shift in structure, tone, and character dynamics. So, do revise today's notes and come prepared to reflect and question even more. And if you found this lecture insightful, don't forget to like, share, and subscribe to the channel for more such detailed literature classes. Your support helps keep quality content coming your way. Thank you for joining. See you in the next class.